Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win for Southern Command. Milkha Singh establishes a new record timing of 46.1 seconds. ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਖਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਐਥਲੀਟ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰੇਸ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਖੈਰ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੀਵ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਹੋਣ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮਸ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, श्रद्धांजलि दी जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खेलों खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है तेरे को। तो मिल्खा सिंह नहीं रहे ने साडे विच वाले 91 साल की उम्र दे विच उन्होंने आखिरी साह लए ने। इस समय साडे नाल सुमन रावत जी जुड़ रहे ने, वो एक खुद दौड़ाक रहे ने ते लाजमी तौर के उत्ते क्योंकि इंडिया दे विच जिहड़े स्पोर्ट्स दे नाल जुड़े हुए लोग ने, चाहे वो किसी भी गेम दे नाल होण तो वो मिल्खा सिंह नूं या मिल्खा सिंह दे नाल खुद नूं जुड़िया होया जरूर महसूस करते हैं। सुमन रावत जी, स्वागत है आपका। फर्स्ट रिएक्शन आपका, किस तरह से आप आज याद कर रहे हैं मिल्खा सिंह जी को? पूरी दुनिया उनको याद करिए, आप किस तरह से खुद को, अपने स्पोर्ट्स को उनके साथ जोड़ती हैं? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ सुमन रावत जी, खासकर स्पोर्ट्स फैटर्निटी के लिए। और इसके साथ
जी जी सुमन जी, आपकी आवाज आ रही आ रही है आवाज आ आपको? रही जी। हाँ, ये बहुत ही दुखद समाचार है हम सभी के लिए, खासकर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी ही नहीं, मुझे लगता है इंडिया के हर, आज मतलब बहुत अफसोस है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे लेजेंड या जैसे आइकन वो खिलाड़ियों के लिए थे, तो वो मुझे लगता है वो प्रेरणा के स्रोत भी थे। और हम सभी को उनके जाने पे बेहद अफसोस है, क्योंकि जितने बड़े वो खिलाड़ी थे और आइकन थे, तो मुझे लगता है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और उनकी जो उपलब्धियां, जैसे उन्होंने उपलब्धियां जो करी है, जैसे हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जो दौड़ी है वो मतलब इसमें सिंगल ट्रैक में दौड़ी है। तो उस समय ऐसी कोई हमारे ट्रैक में सिंथेटिक ट्रैक नहीं हुआ करते थे, जी लेकिन उससे अच्छा किया। और मुझे लगता है कि ये हमेशा जो है हमारे बीच में रहेंगे। ये बात ठीक है कि आज मतलब वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमारी सभी खिलाड़ियों की यादों में एक प्रेरणा के स्रोत में अवश्य रहेंगे। जी बिल्कुल, हर किसी के जहन में जरूर रहेंगे। जिस तरह से आपने जिक्र किया, मैं एक और चीज समझनी चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं हर स्पोर्ट्स में कि वो पूरे देश की सोच बदल देते हैं स्पोर्ट्स को लेकर। आपको लगता है कि मिल्खा सिंह आजादी के बाद जिस तरह से दौड़े देश के लिए, तो एक पूरे देश को बूस्ट करने का, ना सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं कि आज़ादी 1947 के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो हो रही थी, और बहुत एक आप कह सकते हैं कि ऐसे दौर से देश निकल रहा था जहां पर एक खुद को बूस्ट करने के लिए पूरे देश को कुछ ज़रूरत थी। तो वहां पर आपको लगता है कि मिल्खा सिंह ने स्पोर्ट्स को इस तरह से बूस्ट किया? जी हाँ, बिल्कुल। उस समय आजादी के बाद की अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है ये तो हम सोच भी नहीं सकते, जैसे उन्होंने स्पोर्ट्स में वो आगे बढ़े। और उनको मतलब उसके बाद ये स्पोर्ट्स आएंगे उस समय जो मतलब, तो ऐसे में भी मतलब उनको उन्होंने फिर भी उस अपने जज्बे को जो है वो इतना बरकरार रखा, और उसके साथ उन्होंने प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस के बाद जो है वो उन्होंने भारत का नाम, तो मुझे लगता है ये अपने आप में ही एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और उस खासकर उस जमाने में, आज पूरी फैसिलिटी है लेकिन उस समय फैसिलिटी नहीं थी। और उस समय अगर हम ये बात करें कि भी आजादी की बात करें, तो उस समय तो सभी को बहुत मुश्किल था कि भी इंडिया का नाम कैसे ऊंचा करना। लेकिन उस समय ऐसे वक्त पे उन्होंने हमारे इंडिया का जो झंडा है वो बुलंद किया। जी सुमन जी, आप खुद एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट देश को कर चुकी हैं, अगर ये भी बता पाएं कि एशियन गेम्स प्रदेशवासियों को जरूर। जी जी मैं माफी चाहूंगा, बीच में आपको मैं रुक रहा था, मेरी आवाज उम्मीद आप तक पहुंच रही होगी। मैं एशियन गेम्स का जिक्र कर रहा था कि मिल्खा सिंह जी को हम याद कर रहे हैं उनके एशियन गेम्स के मेडल्स के लिए, ओलंपिक्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। एशियन गेम्स में आप खुद देश को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। समझना चाहेंगे कि एशियन गेम्स का प्रेशर कैसा होता है जब आप हिंदुस्तान जैसे बड़े देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी हाँ, प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि सभी की उम्मीदें आप पे टिकी होती है। और उस समय उस प्रेशर को मेंटेन करना और आपको परफॉर्मेंस, और आप भारत के लिए मेडल भी लेना। और मिल्खा सिंह जी का भी एक ये सपन रहा होगा कि वो ओलंपिक्स में अपने भारत का जो है झंडा बुलंद रखे, और एक उस पोडियम में खड़े होने का जो एक सपना हर खिलाड़ी का होता है वो हो जाएगा। तो इसमें खिलाड़ी को प्रेशर रहने के बावजूद भी एक उम्मीद रहती है कि वो जो है अपना भारत का जो है ऊंचा मतलब झंडा ऊंचा करेंगे। और जो एशियन गेम्स या ओलंपिक्स की बात करें, तो इसमें पूरे मतलब पूरे कंट्री के वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी जो है वो आते हैं और उनके साथ कम्पीट करने। और उस समय की परफॉर्मेंस, मतलब उस समय की बोलते हालात या जैसे भी फैसिलिटीज थी, उसके बावजूद जो है आप करते, तो मैं समझ सकती हूँ इससे ज्यादा फक्र की बात हमें किसी को नहीं हो सकती। शुक्रिया सुमन जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। सुमन जी की तरह पूरा देश इस समय याद कर रहा है मिल्खा सिंह जी ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਿਰਫ ਬਤੌਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ किसी भी फील्ड का कोई शख्स क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र का कोई शख्स क्यों ना हो, अज याद कर रहा उन्होंने हर कोई। देश की हर छोटी वड्डी शख्सियत उन्होंने ट्वीट करके या अपने पद्धर से जिस तरीके नाल भी है वो याद कर रहे हैं। मिल्खा सिंह नहीं रहे ने साडे विचाले, कोरोना तो पीड़ित सी, उस तो रिकवर किया, पर फिर भी उस जिंदगी की जंग हार चुके ने। करीब 5 दिन पहला उन्होंने पत्नी की मौत हुई सी, ते
शुक्रवार रात 11:30 वजे उन्होंने आखिरी सांस लिए पीजीआई चंडीगढ़ में। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया है। कल तक वो हमारे बीच में थे, विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। और सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगी कि आज 2 मिनट का मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक छोटे जे ब्रेक लिए रुक रहे हैं, वापस आवांगे कुछ और खबरें। Champion Milkha Singh forges ahead to chalk a win for Southern Command. Milkha Singh establishes a new record timing of 46.1 seconds.